everyone, welcome to the next lecture. In this lecture, we are going to discuss the next topic of function, that is a domain of a real functions. As you know, in the last lecture, we have discussed about what is function. If you don't know what is function, then must watch previous video. Link is given in the description box. Also, you can click on the icon. Otherwise, after the end of this video, you will get the link. Now, domain. Why we are studying the domain? We know that the function, that means the mapping from non-empty set A to B, and every element of set A has unique image in set B. Suppose here F is a mapping from non-empty set A to B, and every element of set A has unique image in set B. That means this complete set A is nothing but domain. If we know the mapping, और mapping अगर known है, that means आपको set A पता है, so तब आप क्या बोल सकते हैं कि domain यहाँ पे first set जो है that is our domain. But sometimes पास में only function given रहेगा and they are asked about the domain. तो domain क्या हो सकता है वो आपको find out करना है. तो उसके लिए सबसे पहले हम discuss करते हैं what is real valued function and what is real function. So real valued function जिसकी value real में आती है that is called a real valued function. For example, here suppose we write f of x equals to x square. Here instead of this x you can put any real numbers. आप यहाँ पे x के जगह पे any real number put up करो तो we get corresponding value of function which is again a real numbers. So यहाँ पे जो भी value आप put up कर रहे हैं x is belonging to r, तो we get corresponding value of function, that value is again belonging to r. And this value is belonging to r, that means ये क्या हो जाएगा, they are giving the real value, so it is called the real valued function. So specially real valued function means क्या होगा कि ये जो है it is nothing but the images. ये क्या होता है, x is member of r and f of x nothing but image of element, and image is contained in set B. So any function f is a mapping from set A to B is called a real valued function if this set B is a subset of R. If set B is a subset of R, then we can say given function is a real valued function. क्योंकि अगर set B real valued है तो set A के images कहाँ पे होते हैं, B set के अंदर, और B set R के अंदर कंटेन है, मतलब उसमें सभी के सभी क्या है, real numbers है. So हर एक एलिमेंट set A के हर एक एलिमेंट की इमेज क्या हो रही है, रियल नंबर के फॉर्म में आ रही है, तो उसके करस्पॉन्डिंग रियल वैल्यू मिल रही है. दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज ए real valued function. So what about the real function? Real function means क्या होता है, if we have given function f mapping from set A to B and here set A and set B both are subsets of R. If set A and B both are subset of R, that is nothing but set of real numbers. So दोनों सेट्स अगर set of real number के सबसेट है तो then we can say it is a real function. मतलब domain as well as codomain both are real, then we can say it is a real function. And here only set B is a subset of R, ये अगर known है तो we can say it is a real valued function. और यहाँ से every real function क्या होता है, real valued function, क्योंकि रियल वैल्यूड फंक्शन होने के लिए सिर्फ बी सेट का कंडीशन है, वो अगर होल्ड होता है तो वी कैन से इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन. सो यहाँ पे रियल फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज बी सबसेट ऑफ आर कंडीशन होल्ड करता है, दैट मीन्स एवरी रियल फंक्शन इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन. सो फॉर एग्जाम्पल हियर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 एंड क्वेश्चन इज फाइंड domain. We are talking about the real function. तो रियल फंक्शन है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे x की जो भी आप वैल्यू पुट अप कर रहे हैं ये सब के सब x क्या होंगे, r के अंदर बिलोंग करेंगे. x इज बिलोंगिंग टू r. अगर ये x रियल नंबर्स आप यहाँ पे पुट अप कर रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग जो इमेजेस मिल रहे हैं वो जो b सेट है वो भी क्या होना चाहिए, सबसेट ऑफ r. सो करस्पॉन्डिंग इमेज ऑफ दिस एलिमेंट ऑफ x इज आल्सो क्या होना चाहिए, दिस इमेजेस that is nothing but f of x is also belonging to R. If element as well as images both are belonging to set of R, then that is called the real function.
अब ये अगर रियल फंक्शन है, ये हमारे पास में नोन है कि f इज अवर रियल फंक्शन एंड फाइंड द डोमेन। अब डोमेन फाइंड आउट करने का मीनिंग क्या होगा कि ऐसी x की वैल्यू बताओ कि जहाँ पे आपका ये f ऑफ x ऑलवेज बिलोंग होगा R के अंदर। यहाँ पे कोई भी एक भी कंडीशन फेल नहीं होनी चाहिए, ऐसे सभी वैल्यूज को आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे आप x की कोई भी रियल नंबर्स की वैल्यू पुट अप करो तो वी गेट द यूनिक आंसर। फॉर एग्जाम्पल इफ यू पुट रियल नंबर 0, so corresponding value of f is 5. If you put x equals to 1, then corresponding value is 8. So here if we put any real numbers 0.5, 0.6, any real numbers यहाँ पे अगर put up करते तो we get the corresponding value of function which is again a real. So इस फंक्शन को कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं, आप एनी रियल नंबर पुट अप कर सकते हैं। तो इसके लिए डोमेन मीन्स क्या हो जाएगा, डोमेन of f of x is complete set R. तो डोमेन फाइंड आउट करना मतलब क्या हो रहा है कि हम ऐसा एक सेट बता रहे हैं, सेट A, कि जिसके हर एक वैल्यू के लिए आपको क्या मिलेगा, फंक्शन की रियल वैल्यू मिलेगी। अब समटाइम्स क्या होते हैं, ऐसे कुछ फंक्शंस रहते हैं कि वहां पे आपको रियल वैल्यू नहीं मिलती है, तो उस टाइम पे उसका डोमेन में भी चेंज हो सकता है। एक एग्जांपल देखते हैं सो दैट यू विल गेट द आइडिया व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक डोमेन। Now see the next example. Here f of x equals to 1 upon x square minus 5x plus 6 and question is find the domain. अब देखो प्रीवियस एग्जाम्पल में आप एनी रियल नंबर पुट करते तो करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन आ रहा था उसकी वैल्यू भी क्या थी, रियल नंबर। तो दैट्स वाई वहां पे कंप्लीट सेट आर इज ए डोमेन। बट हियर इन दिस एग्जाम्पल इफ यू पुट x इक्वल्स टू 2, पुट करके देखो x इक्वल्स टू 2 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन। If we factorize this term, find the roots, then it is a 1 upon x minus 2, x minus 3. So इस टर्म के फैक्टर क्या हो गए, x minus 2, x minus 3. So ये जो x फैक्टर्स है इसका मतलब क्या हो रहा है कि when we put x equals to 2, तो x की वैल्यू 2 अगर इस फंक्शन के अंदर पुट अप करते हैं तो then here f of 2 is not defined because 1 upon 0 is not defined. Similarly, if we put x equals to 3, then again we get not defined. और ये जो infinity रहता है, infinity is not a number, मतलब ये जो infinity है ना, it is not belonging to R. और हमें क्या चाहिए, रियल फंक्शन, और रियल फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए कि R, A and B बोथ कैसे होने चाहिए, सबसेट ऑफ R. सो ये डोमेन फाइंड आउट करना, दैट मीन्स इस तरह से सेट A को फाइंड आउट करना है कि सो दैट इस सेट A के वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो इमेजेस मिल रहे हैं इट इज अगेन क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। बट अगर यहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा है तो इन्फिनिटी तो R सेट में बिलोंग ही नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वी आर नॉट गेटिंग रियल नंबर। सो हियर इस फंक्शन को हर एक x की वैल्यू के लिए ये क्या करेगा, रियल वैल्यू देगा एक्सेप्ट 2 and 3। सो सेट ऑफ रियल नंबर्स के हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन रियल वैल्यू दे रहा है एक्सेप्ट दैट 2 and 3। इसका मतलब क्या हो गया कि डोमेन फॉर दिस फंक्शन इज सेट ऑफ R माइनस 2, 3। मतलब R सेट में से आप सिर्फ ये दो एलिमेंट को हटा दो तो रिमेनिंग जो बचा हुआ सेट रहेगा, इस कंप्लीट सेट के लिए ये फंक्शन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, वहां पे आपको पर्टिकुलर रियल वैल्यू मिलेगी। सो दिस फंक्शन इज एग्जिस्ट फॉर दिस डोमेन। Now see the next example. F of x equals to under root of x square minus 9. Find domain. Here function contain under root and we know that under root of negative term does not exist. Does not exist in real because under root of -4 क्या होता है, under root of -4 is twice I. तो इसका आंसर कैसे आ रहा है, इमेजिनरी के फॉर्म में आ रहा है। और ये जो twice I रहता है ना, it is belonging to set of complex number, but twice I does not belonging to set of real numbers. So here under root में जहाँ पे भी negative number आता है, that means that number is not belonging to set of real numbers. So यहाँ पे function कैसा है, contain कर रहा है under root of x square minus 9. So here again we have to put the value of x and find the corresponding value of function. So x की अगर कोई value put up करते हैं, जैसे for example if we put x equals to for example 4, so here we get under root of 16 minus 9
अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 9 इज 7 एंड इट इज बिलोंगिंग टू आर। इसका मतलब है x इक्वल्स टू 4 में कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इसको प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, जब अंडर रूट वाला टर्म क्या होगा, निगेटिव। ऐसा x का वैल्यू यहाँ पे पुट अप करो सो दैट इट विल बी निगेटिव, और अगर निगेटिव आता है इट मीन्स उस वैल्यूज के लिए, उस टर्म के लिए फंक्शन एग्जिस्ट नहीं है। सो दैट मीन्स इस फंक्शन को प्रॉब्लम कहाँ पे, इफ दिस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 9 विल बी लेस दैन 0। whenever it is less than 0 then our function is not exist, that means here x square is less than 9. So x square is less than 9, that time our value of function does not exist. So ऐसे कौन से x की वैल्यूज है जहाँ पे स्क्वायर फाइंड आउट करने के बाद में आपको लेस दैन 9 वैल्यू मिल सकती है। सो सी ऑन रियल टाइम इट इज a 0, -3, +3, ये अप टू जाएगा infinity and here up to minus infinity. So if we put value from minus infinity to 3, इनके बीच में से कोई भी अगर नंबर आप यहाँ पे उठा के देखोगे, जैसे 1, 2, सो इसमें पुट अप करके देखो x इक्वल्स टू 1 तो वी गेट -8, x इक्वल्स टू अगर 2 पुट अप कर दे तो इट विल बी 4 माइनस 9 दैट इज -5। सो -3 to 3 इनके इस इंटरवल के अंदर की कोई भी वैल्यू अगर आप x की कंसिडर करते हो तो दैट टाइम वी गेट दिस नेगेटिव टर्म। इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन इस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट नहीं है, बाकी अदर टर्म के लिए इसको क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट मीन्स इसके लिए नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन इज नॉट एग्जिस्ट, बट रिमेनिंग टर्म के लिए क्या होगा, एग्जिस्ट। अब रिमेनिंग टर्म का अगर एग्जिस्टेंस है इसका मतलब है वो क्या हो जाएगा, उसका डोमेन। सो हियर सो द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन is equals to minus infinity to minus 3 union 3 to infinity, 3 to infinity। यहाँ पे -3 अगर पुट अप करते हैं तो -3 स्क्वायर इज 9, 9 माइनस 9 इज 0, तो अंडर रूट ऑफ 0 इज 0। सो 0 आंसर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट आंसर क्या नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी या फिर इमेजिनरी। इन्फिनिटी और इमेजिनरी छोड़ के बाकी कोई भी आंसर यहाँ पे रियल नंबर्स अगर है तो वो चल सकता है। तो यहाँ पे 0 आंसर आ रहा है -3 पे, तो फंक्शन इज अगेन एग्जिस्ट, दैट मीन्स ये -3 इंक्लूड कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर 3 वी गेट वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 0, दैट मीन्स यहाँ पे 3 को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दिस इज आवर डोमेन। Now see, from previous example it is clear that whenever we are talking about domain of real function, then if the function contain any term in denominator, then that denominator must be not equals to 0. And second is under root of any function, if given the function contain under root of function of x, then that function always hold a condition, that is it must be greater than equals to 0. So under root वाला term positive होना चाहिए और denominator का term not equals to 0 होना चाहिए। अगर ऐसी कोई x की वैल्यूज मिलती है जहाँ पे ये कंडीशन ओके है तो वो जो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x है दैट इज नथिंग बट अवर डोमेन। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल, हियर f of x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो गिवन फंक्शन है इसके पास में एक्चुअली दो फंक्शन है, फर्स्ट वन इज दिस वन, दिस इज सपोज h एंड दिस इज आवर g। तो दो फंक्शन की एडिशन के फॉर्म में ये f of x गिवन है। सो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे डोमेन ऑफ दिस फंक्शन h। अब h का डोमेन क्या हो सकता है, तो इसको कहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है वो चेक करो। इसको प्रॉब्लम कहाँ पे, व्हेन दिस अंडर रूट टर्म विल बी नेगेटिव। सो हियर एग्जिस्ट ओनली इफ 4 माइनस x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। इफ इट इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 देन फंक्शन क्या होगा, रियल वैल्यू देगा, दैट मीन्स इट इज एग्जिस्ट, सो इट इज नथिंग बट 4 इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू x। अब तब x कैसा हो गया, लेस दैन इक्वल्स टू 4। सो इफ वी टेक एनी वैल्यू ऑफ x विच इज लेस दैन इक्वल्स टू 4 देन वी गेट दिस अंडर रूट टर्म इज पॉजिटिव, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, h of x दिस फंक्शन इज एग्जिस्ट। सो ये फंक्शन एग्जिस्ट होगा व्हेन x is less than equals to 4. So for this function domain is minus infinity to 4. Second is g of x. Here g of x is 1 upon under root of x square plus 1. So यहाँ पे डिनोमिनेटर टर्म है और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, मस्ट बी नॉट इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 1 क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0। बट वी नो दैट x स्क्वायर प्लस 1 कभी 0 होगा ही नहीं, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1
ये 0 होने के लिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होना चाहिए। और रियल नंबर्स में एनी रियल नंबर अगर आप कंसिडर करते तो उसका स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1, ऐसा कोई एक्स एग्जिस्ट नहीं है कि जहाँ पे आपको -1 मिले। दैट मीन्स रियल के अंदर किसी भी एक्स की वैल्यू पे आपको -1 आंसर नहीं मिलेगा। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 ये आंसर नहीं मिलेगा। सो ये डिनोमिनेटर तो कभी 0 होगा नहीं। फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे निकल गया। सेकेंड इज अंडर रूट भी कंटेन है जी ऑफ एक्स में, और अंडर रूट कैसा होना चाहिए, अंडर रूट का जो टर्म है, फंक्शन है, वो मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। Here g of x function contain अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये टर्म कैसा है, ऑलवेज ग्रेटर दैन 0। ये 0 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ऐसा कोई टर्म नहीं है। एज वेल एज ये कभी निगेटिव भी नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर होने की वजह से ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, और ये 1 तो प्लस में ही। सो दैट मीन्स ये होल क्वांटिटी कैसी है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0। सो ये जी ऑफ एक्स को कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए एग्जिस्ट है। इफ इट इज एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल नंबर्स, दैट मीन्स डोमेन फॉर जी ऑफ एक्स इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो जी फंक्शन के लिए डोमेन क्या हो जाएगा, कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो एफ ऑफ एक्स इज, ये जो गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का डोमेन क्या होगा, ये जो एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है इन दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन। अब एच ऑफ एक्स का डोमेन ये है एंड जी ऑफ एक्स का डोमेन ये है, इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन का पार्ट निकालते हैं तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, -∞, क्लोज इंटरवल 4। सो इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ एच एंड डोमेन ऑफ जी is this one, and it is nothing but domain for our given function f of x. So therefore domain of f is -∞, close interval 4. So this is the domain for given function f of x. So ये हो गया सिंपल एग्जाम्पल फाइंडिंग द डोमेन ऑफ फंक्शन। इसी के जैसे एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल रिमेन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके लिए वी रिक्वायर्ड अ वेवी कर्व मेथड। So firstly, in next lecture we discuss the wavy curve method, then we solve some tricky example. Also, we discuss the range of function. And to get the notification of that video, you have to subscribe my channel and click on the bell icon. So you will get the notification of that video.